हेलो बच्चों। हम लोग अल्कोहल फिनॉल इन ईथर्स में अल्कोहल और फिनॉल का पार्ट ख़त्म करके ईथर्स के अंदर प्रिपरेशन मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हमें सेकेंड प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है जिसका नाम है विलियमसन्स प्रिपरेशन मेथड। विलियमसन्स प्रिपरेशन मेथड फॉर ईथर, प्रिपरेशन मेथड्स फॉर ईथर्स। तो ये एक्चुअली दो स्टेप का रिएक्शन है। इन स्टेप नंबर 1 द alkoxide ions are produced by the reaction of alcohol with sodium atom. This sodium alkoxide will be then reacted with the haloalkane molecule and it will form the ether. Let us see how. So here you have got alcohol molecule. This alcohol is reacted with sodium metal. You are knowing that alcohols are acidic. Sodium metal when reacts with acid forms hydrogen gas. This hydrogen gas is generated over here and this alkoxide will be converted into this alcohol will be converted into alkoxide. This is known as sodium alkoxide. To balance this equation, we are supposed to multiply this with 2, this with 2 and this also with 2. This was your first step. So in second step, this alkoxide ions will be reacted with haloalkanes. This will be reacted with haloalkanes. Here X can be chlorine, bromine or iodine. This is your haloalkane. Your haloalkane reacts with sodium alkoxide. This reacts with sodium alkoxide. So when this reacts with sodium alkoxide, what will happen? So this sodium and this halogen, they will combine and form NaX. Let us represent this by R dash in order to have the clear idea. So what will happen? So here this alkoxide and haloalkane will combine to form the ethers and the NaX will be out, sodium halide. This halide can be either chloride, can be either bromide, can be either iodide. So this is basically two-step process. In the first step, the alkoxide ions are generated by, in this reaction, alkoxide ions are generated by reaction of alcohol with sodium. Reaction of alcohol with sodium metal, which further reacts with haloalkane and forms ethers, और वो ईथर्स बना देते हैं। चलिए, तो ये तो विलियमसन सिंथेसिस की जनरल बात हो गई। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर आइडिया आ जाए। Let us suppose that we are reacting ethanol with sodium metal. So ethanol reacts with sodium metal. What it will form? So it will form CH3 CH2ONA plus
hydrogen gas. Balancing the equation will result into addition of 2 before these 3 materials. Now this sodium ethoxide, let us give the names to each and every one. So this is ethanol, this is your sodium ethoxide. Now this sodium ethoxide will react with any of the haloalkane. Let us say the haloalkane is methyl iodide. This is sodium ethoxide. This is methyl iodide. When this two combines, what will happen? So this sodium combines with iodine and forms sodium iodide, and this two combines with each other and forms methyl ethyl ether. Methyl ethyl ether. So बच्चा लोग, here you can see that you have got the unsymmetrical ether. It is not necessary that Williamson's preparation method for ethers will only generate unsymmetrical ethers. It can also generate symmetrical ethers. Let us take one example in which the Williamson's method is giving us the symmetrical ethers. So what we are doing here, we are taking the same material, that is sodium ethoxide. Now from where this sodium ethoxide is coming, you already are knowing. Okay, this reaction is giving you the sodium ethoxide. So instead of methyl iodide, let us take ethyl iodide. Instead of methyl iodide, we are taking ethyl iodide. So what will happen? This sodium and this iodine combines to form sodium iodide. This both combines to form the diethyl ether. See, you can see that over here symmetrical ether is generated, that is diethyl ether. So Williamson's preparation method has got one advantage, that it gives us both symmetrical as well as asymmetrical ethers. Now let us see how this reaction is taking place, that is what is the mechanism of this reaction. So यहाँ पर बेसिकली रिएक्शन का पाथवे जो है ना वो SN2 है. SN2 मतलब सब कुछ एक साथ होगा, एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप. कैसे होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है. ये ये ऑक्साइड जो है वो इधर मिथाइल के ऊपर अटैक करता है. उसके बाद ये आयोडाइड जो है वो निकलता है ऐसे. ये आयोडाइड इस सोडियम के साथ कंबाइन होके Na बनाता है. अगर मैं आपको इंटरमीडिएट ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, H H H, ये I, और ये पूरा पार्ट इधर होगा CH3 CH2O-. ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, इसीलिए बहुत रफ ड्रॉ कर रहा हूँ इधर. फिर जैसे रिएक्शन आगे जाएगा ना, ये आयोडाइड माइनस निकल जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपका अनसिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा. तो कहने का मतलब है कि ये रिएक्शन जो है वो SN2 रिएक्शन है. अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से होता है. देखो बच्चों, मैंने बैक साइड से अटैक किया है, ठीक है. चलो अब इसके लिमिटेशंस पढ़ते हैं. एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि विलियमसन SN2 है और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय एसिड कैटालाइज्ड SN1 है, ठीक है. तो अभी हम विलियमसन के बारे में समझ रहे हैं
जो SN2 पाथवे से प्रोसीड होती है। तो हियर टर्शियरी अल्कोहल्स, यहाँ पर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, हम यहाँ पर अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं ना, तो अल्कोहल प्रीवियस केस में था। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स cannot be used for preparation of ethers, हम ईथर्स के प्रिपरेशन के लिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स यूज नहीं कर सकते। अगर उनको यूज किया तो क्या होगा, दे अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अगर हमने यहां पर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड किया तो दे अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इंस्टीड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं कैसे। तो लेट अस सपोज कि मैंने यहां पर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया, इसका अगर मैं नाम दूं तो क्या होगा, सोचो। बराबर, फिर ये आपका टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। अब इसका रिएक्शन मैं सोडियम मिथॉक्साइड से करवा रहा हूं। अब सोडियम मिथॉक्साइड कैसे आया वो आप जानते हो, मिथेनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाया। तो अगर मैंने इस रिएक्शन को करवाया तो बेसिकली क्या होगा, अल्फा पोजीशन पर से हेलोजन बीटा पोजीशन पर से एक हाइड्रोजन आउट होकर के आपका आल्कीन बना देगा। क्या बना देगा, आल्कीन। यहां पर वो आपका आल्कीन बना देगा, प्लस साइड प्रोडक्ट्स के फॉर्म में CH3Cl प्लस आपका CH3OH प्लस NaCl होगा। मुझे यहां पर प्रिपेयर करना था ईथर और बन गया अल्कीन। बराबर, ये क्यों होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूं। ये आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, बराबर, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, और ये आपका प्राइमरी अल्कोक्साइड है, बराबर ना। अब ये रिएक्शन कैसे होता है वो समझना है हमको। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका, वैसे क्वेश्चन का लिमिटेशन में आपको इतना ही लिखना है, बट ऐसा क्यों हो रहा है वो एक्स्ट्रा मैं आपको समझा रहा हूं। बराबर, चलो तो देखिए बच्चों क्या होगा। यहां पर मैंने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लिया, ये आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, प्लस इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूं सोडियम मिथॉक्साइड्स के साथ। तो ये जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल कौन सा जनरेट करेगा, मिथॉक्साइड। ये जो मिथॉक्साइड है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है, मिथॉक्साइड जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब बच्चों रिएक्शन का पाथवे है SN2, मतलब यहां पर फ्रंट अटैक का तो बिल्कुल चांस ही नहीं है। भूल जाओ कि ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक करे, पता है क्यों, क्योंकि यहां पर हेलोजन के ऊपर जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इसको रिपेल करेंगे। देखो बच्चों मेजॉरिटी बुक्स में लिखा हुआ ये रीजन है, बट इसको अगर हम एमओ डायग्राम की मदद से समझें तो रियल पिक्चर आता है सामने, बट उतने एडवांस लेवल तक हम नहीं जाएंगे। हमको बेसिक चीज़ है, समझ में आ रहा है कि भाई ये नेगेटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो SN2 है तो भाई बैक साइड के बारे में सोचो, बैक अटैक के बारे में, वो भी पॉसिबल नहीं है। रीज़न तो भैया यहाँ पर ये जो 1, 2 और 3 मिथाइल ग्रुप बैठे हुए हैं ना, वो इतना ज़्यादा क्राउडिंग कर देते हैं, इतना ज़्यादा इस कार्बन के ऊपर ट्रैफिक कर देते हैं कि यहाँ पर मिथॉक्साइड आ ही नहीं पाता है। खुद मिथॉक्साइड भी बल्कि है, ऊपर से ये 3 मिथाइल ग्रुप भी बल्कि हैं, इन्होंने रास्ता यहाँ पर बंद करके रखा है। ये बहुत बड़ा हाथी है, अंदर आ नहीं पा रहा है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि इस कार्बन के ऊपर ही अटैक क्यों हो रहा है। तो बच्चों समझो ये कार्बन हेलोजन की वजह से डेल प्लस है, ये हेलोजन डेल माइनस है।
तो क्योंकि हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन क्या करता है, यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेता है। तो कार्बन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करता है। तो कहने का मतलब फ्रंट और बैक दोनों अटैक पॉसिबल नहीं है। ये मटेरियल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकता तो वो बेस की तरह काम करेगा। देखो बच्चों, याद रखो, हमेशा न्यूक्लियोफाइल और बेस की फाइटिंग चलती रहती है, बराबर। कभी वो न्यूक्लियोफाइल होगा, कभी बेस होगा, डिपेंड करता है रिएक्शन कंडीशन के ऊपर। अब समझ में ना आए कि ये बेस क्यों है, तो समझो कि ये मिथॉक्साइड जो है वो H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर H+ को एक्सेप्ट कर सकता है तो क्या होगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो वो सब्स्टिट्यूशन करवाने की जगह पे क्या करेगा, इन तीनों में से किसी के भी एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, वहां से प्रोटॉन निकालने का ट्राई करेगा। हाइड्रोजन नहीं, प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसको देके जाएगा, कार्बन को। वो इलेक्ट्रॉन्स से फ्री होकर H+ के फॉर्म में इसके साथ कंबाइन होकर के बना देगा पहले तो मीथेनॉल। चलो भैया, वो बात तो आ गई हमको समझ में। यहाँ पर Na+ फ्री हो चुका है, वो समझना। अब इस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो इसके साथ वो शेयर कर देता है। अगर इसके साथ शेयर कर दे तो कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से ही थे। ये 5वां बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन, तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के निकाल देगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, हमने 10th चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ा है। तो ये क्लोरीन जो है वो यहाँ पर इस Na+ के साथ कंबाइन होके बना देता है NaCl। चलो भैया, इसका भी हिसाब हुआ पूरा। अब यहाँ पर बचा क्या, तो यहाँ पर बचा CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। इस कार्बन ने इस कार्बन को बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स दिए थे, मतलब अब इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। सोचो, यहाँ पर कार्बन ने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के इस कार्बन को मिले, तो इस कार्बन ने इसके साथ पाई बॉन्ड बना लिया। तो कहने का मतलब आपका क्या बन गया, आल्कीन। तो बेसिकली अगर आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं विलियमसन के अंदर, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो क्या कर देता है, इंस्टीड ऑफ ईथर फॉर्मेशन वो आपका आल्कीन फॉर्म कर देता है। अब कुछ स्मार्ट बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला कि टर्शियरी हेलो अल्केन नहीं ले सकते, बरोबर। क्या हम, और मिथॉक्साइड का कोई क्वेश्चन नहीं है, वो टर्शियरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर हेलो अल्केन को प्राइमरी ले लें, यह आपका प्राइमरी हेलो अल्केन है, और इसका रिएक्शन हम लोग टर्शियरी अल्को ऑक्साइड के साथ करवा दें। हाँ जी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब समझना, यहाँ पर बहुत बढ़िया कंसेप्ट आ रहा है। ये हो सकता है कैसे, तो अब आप समझ लो कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, ये वाला, और Na+ यहाँ पर फ्री होगा एज ऑफ नाउ, बराबर। बहुत छोटा है इसलिए मैं थोड़ा सा एक आध स्टेप आपका स्किप करता हूँ। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस कार्बन को बैक साइड से अटैक मारेगा। देखो बच्चों, SN2 है, बैक साइड से अटैक मारेगा। तो बैक साइड से अटैक मारेगा ना, तो इंटरमीडिएट कुछ ऐसा बनेगा, समझना। हाँ बच्चों, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, SN2 रिएक्शन चैप्टर नंबर 10। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड जो है वो अब तोड़ना चालू होगा, क्योंकि अगर इसके पास तो 4 बॉन्ड पहले से ही है ना, ये अगर आके 5वां बॉन्ड बनाएगा तो हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकलने की तैयारी करने लगेगा। और यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर OC CH3 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 ये वाला न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाना चालू करेगा। समझना, इसने ना अभी कंप्लीट बॉन्ड बनाया है, ना उसने अपना कंप्लीट बॉन्ड तोड़ा है। ये इंटरमीडिएट नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट है। SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और आपका इस तरीके से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देख के आप इस तरीके का ईथर बना सकते हो। यहाँ पर इस तरीके का ईथर बन सकता है, ठीक है। CH3, यहाँ पर CH3, एक मिनट, थोड़ा सा क्राउडी हो गया।
इसको मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। तो ये क्या करेगा, इधर से अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। उसके बाद क्या होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, CH यहाँ पर आपका ये वाला स्ट्रक्चर है, CH3 देखो ईथर बन गया। अब यहाँ पर जो ईथर बना है चेक करो, वो अनसिमेट्रिकल ईथर है। यहाँ पर जो ईथर बना है वो आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है। देखो बच्चों चेक करो। तो कहने का मतलब, अब मैं पूरा का पूरा रिएक्शन समराइज करूँ, देखना वापस से आपके लिए लिख रहा हूँ, ये तो मैंने मैकेनिज्म समझाया था। तो यहाँ पर टर्शियरी हेलो अल्केन यूज़ नहीं किया जा सकता। मतलब देखो ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये Cl, ये आपका हो गया CH3ONA, बरोबर। अगर ये रिएक्शन आपने करवाया तो क्या होगा, यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये टर्शियरी हेलो अल्केन है, 3 डिग्री हेलो अल्केन। अगर आपने ये रिएक्शन करवाया तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो NaCl आउट होगा, उसके बाद CH3OH आउट होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका अल्कीन बनेगा लाइक दिस, जो कि मैंने आपको अभी ही समझाया। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, अल्कीन, बराबर। टर्शियरी हेलो अल्कीन लिया और अगर आपने उसका रिएक्शन अल्कोक्साइड के साथ करवाया तो वो अल्कीन बना देगा, अल्कोक्साइड तो अल्कीन। मुझे बनाना था ईथर लेकिन बना अल्कीन, बराबर, बीटा एलिमिनेशन। अब यहाँ पर अगर मैं प्राइमरी हेलो अल्केन ले रहा हूँ, प्राइमरी हेलो अल्केन, और प्राइमरी हेलो अल्केन का रिएक्शन मैं टर्शियरी अल्कोक्साइड के साथ करवाता हूँ, टर्शियरी अल्कोक्साइड, तो वहां पर मुझे ईथर मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे स्टीयरिक हिंड्रेंस हेलो अल्केन का देखना है बच्चों। न्यूक्लियोफाइल अटैक हेलो अल्केन पे कर रहा है, तो जगह है कि नहीं वो हेलो अल्केन का देखना है, इसका नहीं। अगर दरवाज़ा बहुत बड़ा है तो ये ग्रुप कितना भी बड़ा हो अंदर आ सकता है, अगर दरवाज़ा ही छोटा है तो छोटे से छोटा ग्रुप आने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बेसिक फंडा ये है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका CH3 तो है ही, ये CH3 तो है ही, यहाँ पर ये Cl और ये Na कंबाइन होकर के NaCl बना देगा, और यहाँ से इसकी लिंकेज कुछ इस तरीके से होगी, CH3O C CH3 CH3 CH3। देखो बच्चों आपका ईथर बन गया है, अनसिमेट्रिकल ईथर बन गया है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल हेलो अल्केन है, यहाँ पर आपका टर्शियरी अल्कोक्साइड है, और ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, तो हम लोगों ने नोट्स में लिखा, नोट्स एक्चुअली मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ कि हियर लिमिटेशन 1 में लिखा कि हियर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड। अगर आपने टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लिया और अगर आपने उसका रिएक्शन अल्कोक्साइड के साथ करवाया तो वो आपको अल्कीन एज अ प्रोडक्ट देगा, लेकिन टर्शियरी हेलो अल्केन यूज नहीं कर सकते, लेकिन टर्शियरी अल्कोक्साइड कैन बी यूज्ड। हियर इन दिस रिएक्शन टर्शियरी हेलो अल्केन्स कैन नॉट बी यूज्ड बट टर्शियरी अल्कोक्साइड कैन बी यूज्ड, क्योंकि हमें स्टीयरिक हिंड्रेंस हेलो अल्केन का देखना है, ना कि अल्कोक्साइड का। जो दूसरा लिमिटेशन है इस रिएक्शन का वो ये है कि हियर हेलो एरिन्स कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, यहाँ पर हेलो एरिन्स कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर द ईथर्स। व्हाई? बिकॉज हेलो एरिन्स डू नॉट अंडरगो द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। चलो इसको पहले मैं रिएक्शन की मदद से समझाता हूँ, फिर हम लिखेंगे आराम से। तो समझो, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्लोरोबेंजीन, मैं विलियमसन रिएक्शन ही करवा रहा हूँ। विलियमसन के अंदर क्या होता है, आपका हेलो अल्केन यूज़ करते हो ना, उसकी जगह पे मैं हेलो एरिन यूज़ कर रहा हूँ। इस हेलो एरिन का रिएक्शन यहाँ पर मैं सोडियम मिथॉक्साइड के साथ करवा रहा हूँ। ठीक है, समझते जाना बच्चों, सोडियम मिथॉक्साइड, और यहाँ पर है आपका क्लोरोबेंजीन, सोडियम मिथॉक्साइड और क्लोरोबेंजीन।
तो जनरल सेंस हमारा ऐसा कहता है, जो अभी तक हमने सीखा है केमिस्ट्री को रट करके समझे बिना, कि भाई यहाँ से NaCl आउट हो जाएगा और कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा। है ना, बोलने वाले बोल देंगे ये एनीसोल है, चलो ये भी सही है, एनीसोल बोल दो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि है इसीलिए है लिखा है। बट ये मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। क्यों गलत है वो समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जो मिथॉक्साइड है वो न्यूक्लियोफाइल है। मिथॉक्साइड CH3O- नेगेटिव चार्ज है, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे अलग कौन होगा, Cl-, वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इन दिस रिएक्शन वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेसिंग अदर न्यूक्लियोफाइल। बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब यहाँ पर क्लोरीन OCH3 ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है, बट ये पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर। हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से नहीं देते हैं। हेलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा टफ कंडीशन चाहिए होती है। क्यों नहीं देते हैं, तो क्योंकि कार्बन और हेलोजन जो है उसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। हमने इसको समझा हुआ है बराबर 10th चैप्टर में। अगर किसी को डाउट हो तो 10th चैप्टर के इस हेलोएरिन्स के रिएक्शंस को आप देख सकते हो कि वाई हेलोएरिन्स इजीली डू नॉट गो अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वहाँ पर आपको आइडिया आ जाएगा। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको पता है कि यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, कंसिडरेबल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पर हेलोएरिन्स यूज करके इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कराया जा सकता। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक काम करो, यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड ले लो और यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड ले लो, तो क्या ये रिएक्शन जाएगी? द आंसर इज यस, ये रिएक्शन जाएगी। कंफ्यूज्ड? चलिए क्लियर करता हूँ। हाँ 2 मिनट, पहले मैं रिएक्शन लिख लूँ। तो यहाँ पर आपका बनेगा OCH3 और यहाँ पर आपका बनेगा NaCl। तो कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछेंगे सर फर्क क्या है? तो जब तक मैं नाम लिखूँ ना तब तक आप इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है वो समझना। ये मिथाइल क्लोराइड है और ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखो ये रिएक्शन के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं टूटा है, O-Na+ जो अलग थे ना उसका ही बॉन्ड तोड़ करके रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब बेसिकली हम ONA बॉन्ड तोड़ रहे हैं जो आसानी से टूट सकता है, प्लस माइनस चार्ज, इसमें से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा ऑब्वियसली। कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, लेकिन ऑक्सीजन और सोडियम का तो बॉन्ड इजीली टूट सकता है ना। तो कहने का मतलब कि यहाँ से क्या होगा, Na+ जो अलग होगा वो यहाँ पर Cl- को लेके जाएगा और आपका इस तरीके से एसिमेट्रिकल ईथर बना देगा, एसिमेट्रिकल ईथर। इसका नाम आप मिथाइल फिनाइल ईथर या एनीसोल भी बोल सकते हो, मिथाइल फिनाइल ईथर या एनीसोल बराबर। अगर आप इसका मैकेनिज्म समझना चाहो तो मैं वो भी समझा सकता हूँ बराबर। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है। बेसिकली होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड धीरे धीरे कमज़ोर होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे मजबूत होगा और आपका अल्टीमेटली ये एनीसोल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हम नोट्स में क्या लिखेंगे, लिमिटेशन नंबर 2, हमने लिमिटेशन 1 की नोट लिख ली है, तो लिमिटेशन नंबर 2 क्या लिखेंगे कि हियर हेलो, इसको थोड़ा सा साइडवेज कर देते हैं, हेलोएरिन्स cannot be used for preparation of ethers। हेलोएरिन्स को ईथर्स के प्रिपरेशन के लिए नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज
haloarenes do not undergo nucleophilic substitution reactions. Haloarenes न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस इजीली अंडरगो नहीं करते हैं, बिकॉज हेलोएरिन्स डू नॉट अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस इजीली. ठीक है, चलिए ये बात हमको समझ में आ रही है. अब हम बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कन्वर्जन्स समझते हैं. बराबर, चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों कन्वर्जन्स. बराबर, इसको केयरफुली समझिएगा. टेक द स्क्रीनशॉट. चलो पहला जो कन्वर्जन है दैट इज इथेनॉल टू मिथाइल इथाइल ईथर, और जो सेकेंड कन्वर्जन है वो है फिनॉल टू एनिसॉल. अब बच्चों आप इसको अपनी कॉपी में ट्राई करो एक बार. बराबर, हम इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, थैंक यू.